Hello everyone, welcome to Chandigarh Defence Academy, our YouTube channel on which we provide all types of help to our students regarding all the core subjects. My name is Mukesh Kumar, I am HOD Chemistry here and I am serving chemistry from last 20 years. Now what is chemistry? Most important thing within that comes into our mind is, now when we say chemistry, chemistry means that is our everyday life, that is related to all our everyday life things. Now, the most important thing, the first most important thing is that obviously we should know the curriculum. So what is the complete chapters, the units which will come into our syllabus for the complete year 2020 to 21? Because all you know that due to COVID-19, obviously there is also a little modification in basically syllabus, and that is there is only one chapter which is deleted within this complete year. So what I am explaining first of all to all my dear students is that what are the different units, and what are the different types and what are the different components of chemistry which they will study within this complete year. Now, as you can see behind me, there is mentioned behind me. You can see there are three components, I think, if you are watching them. There is physical chemistry, there is inorganic chemistry, there is organic chemistry. I think we all know that. Now, what is the basic difference? Because when a student comes from 10 to +1, basically he is not that much relevant to what is physical chemistry, what is inorganic and what is organic. So what I will say to you is just simply remember the chapters which you have studied within your 9th and 10th class. Now, if I say physical chemistry, remember mole concept. Everybody know what is mole concept. Everybody know they are numericals. So when it is related to calculations, it is related to numericals, we always come to the component of chemistry which is called physical chemistry. And as you can see within this complete year, first 7 units, that is our complete NCERT book, is completely dedicated to the physical chemistry part. तो physical chemistry के total हमारे 7 units हैं, total 7 units जिनकी मार्किंग आपके सामने आपको विजिबल हो रही है. एक्यूरेटली टोटल 36 मार्क्स की हमें टोटल फिजिकल केमिस्ट्री है. क्योंकि आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता होना चाहिए बेटा कि 70 मार्क्स हमारे टोटल होते हैं थ्योरी में. केमिस्ट्री के एग्जाम में 3 घंटे का हमें टोटल टाइम पीरियड मिलता है, टाइम 3 आवर्स. अब उस 70 में से बाकी जो 30 मार्क्स है 100 में से बेटा, दे आर बेसिकली फॉर देयर प्रैक्टिकल मार्क्स. तो यहाँ पे जो 70 है उसमें से जो फर्स्ट 36 मार्क्स हैं, जो पहले 7 यूनिट हैं, वो आपके किसको दिए गए हैं? दे आर गिवन टू योर फिजिकल केमिस्ट्री रिलेटेड टू कैलकुलेशंस. उसके बाद फिर हम जब सेकंड बुक में जाते हैं अपनी एनसीईआरटी के हिसाब से, वो है हमारा यूनिट 8 to 11. उसको हम लोग कह रहे हैं यहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन से चैप्टर्स आते हैं दोस्तों? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर्स आते हैं जैसे आपने पढ़ा था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. ऑल ऑफ अस रिमेंबर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इफ यू रिमेंबर बेटा. तो मेटल से रिलेटेड, ग्रुप से रिलेटेड, पीरियड से रिलेटेड जो भी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वो सब किस ब्रांच में आएगा? वो आएगा हमारा यूनिट 8 to 11, जिसके एक्यूरेटली आप देख सकते हो हमें 4 यूनिट हैं और एक्यूरेटली उनकी मार्किंग भी आपके स्क्रीन पे है. 16 मार्क्स की हमें टोटल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस साल आनी है. उसके बाद तीसरा जो हमारा कंपोनेंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट माना जाता है कंपैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है हमारा यूनिट 12 to 14 जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो. लास्ट 3 चैप्टर्स, इट इज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसके टोटल कितने मार्क्स हैं? 18 मार्क्स फॉर दिस कंप्लीट ईयर. अब इसमें जो हमारा हिस्सा आ गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब है कार्बन एंड कंपाउंड्स. आपने सबने पढ़ा हुआ है कार्बन एंड कंपाउंड्स, याद है बेटा? कार्बन एंड कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन, आपको बहुत अच्छे से पता है. तो ये जो सारा हिस्सा है दैट इज ऑल इनटू द पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. अब इसी में से उन्होंने क्या किया है, लास्ट में आप देख सकते हो 14 चैप्टर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जो है वो इस साल के करिकुलम से डिलीट किया गया है. दैट मीन्स हमारे इस पूरे साल में टोटल हमें 13 यूनिट पूरे प्रिपेयर करने हैं, टोटल 13 यूनिट्स. अब ये चीज इंपॉर्टेंट है बेटा कि केमिस्ट्री अगर प्लान करनी है तो डेफिनेटली हमें क्लियर रखना है कि ये 13 यूनिट जो है अकॉर्डिंग टू द बेसिकली फाइनल एग्जाम हमें पूरी तरह से ग्रास्प करने हैं. और बात याद ध्यान से सुननी है, कॉम्पिटिटिव के लिए हर एक कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो हमारा हो फिजिकल केमिस्ट्री, चाहे हो इनऑर्गेनिक, चाहे हो वो ऑर्गेनिक. तो ये सब हमने पूरे ध्यान से तैयार करने हैं और पूरी जान लगानी है. और आपने हमारे बेसिकली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक भी करना है, ताकि आपकी हम रेगुलरली हर एक सब्जेक्ट में हेल्प कर सकें.
तो ये आपने जरूर ध्यान रखना है बेटा। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कहीं भी, इवन नीचे जो नंबर स्क्रॉल कर रहे हैं वहां से भी आप सारी जानकारी उपलब्ध कर सकते हैं कि आपको क्या क्या हेल्प हमारी तरफ से मिल रही है। उसके बाद फिर मैं बात करूंगा अब आपसे व्हाट इज केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, क्योंकि सबसे पहला सवाल यही आता है सर केमिस्ट्री का यूज क्या है डेली लाइफ में, क्योंकि ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, हर स्टूडेंट पूछता है सर केमिस्ट्री कहाँ काम आएगी जी मुझे डेली लाइफ में। तो सबसे पहली चीज आप देखिए बेटा, आपके सामने फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, फूड। हर एक इंसान को जीने के लिए खाने की सबसे जरूरत ज्यादा है बेटा। सबसे मेन जरूरत क्या है जिंदगी में, खाना। क्योंकि अगर आप फूड ही नहीं खाएंगे बेटा, नेचुरली आप में एनर्जी कहां से आएगी। तो इसका मतलब जब मैं फूड की बात करता हूं, फूड में क्या बेटे, कार्बोहाइड्रेट्स है ना, दे आर कार्बन कंपाउंड्स। सिंपल सी बात आपको याद दिलाता हूं। तो यानी जो खाना हम खा रहे हैं बेटे, दैट इज ऑल बेसिकली मेनली रिलेटेड टू व्हाट, दैट इज रिलेटेड टू केमिस्ट्री। और वैसे केमिस्ट्री को हम लोग बोलते क्या थे, याद हो बेटा लोअर क्लास में, स्टडी ऑफ मैटर। मैटर याद है, जैसे हम लोग कहते हैं कि कोई भी चीज है बेटा जिसका कुछ ना कुछ मास है, थोड़ा स्पेस ऑक्युपाई किया है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मैटर। जैसे कोई पेन ले लो, कोई स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, तो इसका मतलब वो क्या है, वो मैटर है। तो कोई भी चीज बेटे जिसका थोड़ा मास है और जिसने थोड़ी सी भी जगह घेरी हुई है, उसको हम क्या बोल देते हैं, मैटर। तो स्टडी ऑफ मैटर, केमिस्ट्री। सिंपल सी बात याद रहेगी बेटे। अब दूसरा पॉइंट देख लीजिए, आपके सामने स्क्रीन पे विजिबल हो रहा है, ऑक्सीजन। बेटे ऑक्सीजन हम जो ब्रीद इन कर रहे हैं, क्या है ऑक्सीजन, आप सबने पढ़ा है बेटे, एलिमेंट्स, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या है, दीज आर ऑल मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बेटा। अपने एटमॉस्फेयर का जो मेन कंपोजिशन है वो इन्हीं पे तो डिपेंड है। तो ऑक्सीजन तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो हम लोग एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। तो ऑक्सीजन भी क्या है, इट इज अ मेन एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री। उसके बाद आप देख सकते हो बेटे, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है बेटे हमारे दिमाग में, हम हमेशा कहते हैं बेटा, मोस्ट ऑफ अस, हम सब मैक्सिमम बिलोंग करते हैं टू द फार्मर बैकग्राउंड। तो जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं, तो एग्रीकल्चर में जो हम लोग कोशिश करते हैं, क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं फूड प्रोडक्शन बढ़ाने की। हम कहते हैं भाई फूड प्रोडक्शन मैक्सिमम हो, है ना बेटा। और ऑब्वियसली प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या डालोगे बेटा आप क्रॉप्स में, यूरिया फर्टिलाइजर। वो यूरिया फर्टिलाइजर क्या है, हम सबको पता है वो यूरिया फर्टिलाइजर क्या है दोस्तों, याद करो। वो भी क्या है बेटा, दे ऑल आर अगेन केमिकल कंपाउंड्स। तो वो भी किससे बिलोंग करते हैं, वो भी केमिस्ट्री से बिलोंग करते हैं। तो दैट इज ऑल्सो। और इसी के लिए बेटा एक और इंपॉर्टेंट बात हम जो लोअर क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, भाई जो हमारी क्रॉप्स है उनको इंसेक्ट से बचाने के लिए हमें और क्या चाहिए, वी नीड इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, ताकि उनको हम इंसेक्ट से बचा सकें। तो फिर किसकी जरूरत पड़ेगी, फिर आपको केमिस्ट्री की जरूरत पड़ेगी। तो एग्रीकल्चर में तो बेटे केमिस्ट्री बिल्कुल पूरी तरह से घुसा हुआ है। उसके बाद फिर अब जो बेटे टाइम चल रहा है, अब सबको पता है, एवरीबडी नो दिस इज अ टाइम ऑफ कोविड-19, जिसने पूरा बेसिकली एज इट इज पूरी दुनिया को हिला के रखा हुआ है, जिसने हम सबको एक तरह से हमारी जिंदगियों को बिल्कुल रोक दिया है बेटा। एवरीबडी इज डिस्कसिंग अबाउट व्हाट, किसके बारे में बात कर रहे हैं, सब बात कर रहे हैं वैक्सीन। भाई जल्दी से कोविड-19 की वैक्सीन आ जाए। तो बेटा ये जो वैक्सीनेशन है, जिसको हम सिंपल भाषा में बोलते हैं टीकाकरण, है ना, हम सबको पता है डिप्थीरिया, डीपीटी, निमोनिया, टेटनस, सबके टीके लगते हैं बेटा, ताकि इन बीमारियों से हमारा बचाव हो सके। तो ये जो वैक्सीनेशन है, ये जो मेडिसिन है बेटा, ये जो फार्मास्यूटिकल्स है, ये क्या है, दीज ऑल आर कंपोनेंट ऑफ केमिस्ट्री। तो अगेन बेटा ये भी तो केमिस्ट्री है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज डे टू डे लाइफ में क्या होगा बेटा, खाना, और अगर बीमार हो गए तो दवाई। तो दोनों की दोनों चीज बेटा क्या है, केमिस्ट्री। ऑक्सीजन नहीं होगी बेटा, उसी टाइम हमारी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाएगी, तो वो भी हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। फिर हम कहते हैं इंडस्ट्री में कहां यूज हो रहा है, याद करो बेटे, इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज कहां हो रहा है, याद करो बेटे, प्लास्टिक। प्लास्टिक क्या है बेटे, प्लास्टिक जो है बेसिकली रबर जो है बेटे, ऑब्वियसली आप सबको पता है, सब व्हीकल्स चलाते हैं, साइकिल, मोटरसाइकिल, फोर व्हीलर सब चलाते हैं बेटे, उसमें रबर टायर्स क्या है बेटा, वो रबर भी क्या है, दैट इज ऑल्सो बेसिकली बिलोंगिंग टू द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। इसी तरह से आपका प्लास्टिक जो है वो भी बेटा इसी से ही आया है। तो इंडस्ट्री जितनी भी है बेटा, बेसिकली आपकी पेपर इंडस्ट्री होगी बेटे, प्लास्टिक इंडस्ट्री होगी, वो सारी की सारी किस पे डील करती है, किस पे डिपेंड करती है बेटे, केमिस्ट्री पे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बेटे आज के टाइम पे जो आज सबसे बड़ा बेटा इशू होता है, दैट इज ऑफ पोल्यूशन। अब आप विंटर शुरू हुआ है, आप देख सकते हो डे टू डे, आप देख सकते हो देयर इज ऑलवेज अ न्यूज अबाउट कि भी एयर का जो क्वालिटी इंडेक्स है वो दिन ब दिन गिर रहा है। तो किस कारण से, पोल्यूशन से। तो पोल्यूशन के बेसिकली अगर हम उसको ओवरकम करना चाहते हैं, उसको कम करना चाहते हैं, तो किस चीज की बात करते हैं, सोचो बेटा, आजकल सबसे ज्यादा बात किसकी होती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, याद है बेटा सीएनजी। तो सीएनजी भी क्या है बेटा, इट इज अगेन बेसिकली व्हाट, मेन कंपोनेंट अगेन क्या है बेटा, केमिस्ट्री।
तो पोल्यूशन को कम करने के लिए भी जो हम सारे बेटा न्यू फ्यूल्स जो हम इन्वेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनको हम यूज कर रहे हैं, उनमें भी बेटा सारा जो योगदान है वो किसका है? केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री देख लो कहां यूज हो रही है? खाने में, है ना बेटा, ऑक्सीजन लेने में, हमारी फूड प्रोडक्शन के लिए, हमारी हेल्थ के लिए, जितनी वैक्सीन है, जितनी दवाइयां हैं, उसमें बेटा केमिस्ट्री यूज हो रहा है। इंडस्ट्री जितनी डिफरेंट डिफरेंट है बेटा, ऑब्वियसली प्लास्टिक, पेपर वगैरह, रबर वगैरह, वो भी क्या है बेटा? केमिस्ट्री। पोल्यूशन को कम करने के लिए जो फ्यूल्स हम लोग कर रहे हैं बेटा यूज, अब सीएनजी, ऑब्वियसली वो सारे क्या है बेटा? दे आर ऑल्सो द मेन कंपोनेंट ऑफ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री तो डे टू डे लाइफ में बेटा पूरी तरह से घुसी हुई है। ठीक है जी, तो दिस इज ऑल डन क्लियर। तो इसको पूरा ध्यान से सोचना, इंटरेस्ट बन जाए, क्योंकि सबसे पहली चीज क्या होती है, किसी भी सब्जेक्ट को अगर तुमने बेटा टेम करना है, उसको काबू में लाना है, तो आपको उसको अच्छी तरह से इंटरेस्ट उसके अंदर जनरेट करना पड़ेगा। और हम सबसे बड़ी चीज यही करते हैं यहाँ पे बेटा सीडीए में, चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी में, कि हम अपने बच्चों का पूरा इंटरेस्ट जगाते हैं कि आपने जो भी सब्जेक्ट चूज किया हुआ है बेटे, उसमें हम आपकी पूरी हेल्प करें और आपको अपने ड्रीम्स अचीव करने में पूरी जी जान से हम लोग जुटे हुए हैं, ताकि आपको पूरा एज इट इज हेल्प हम दे सकें। और इंपॉर्टेंट बात बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि हमारी लाइव क्लासेस भी चलती हैं। वी हैव आवर ओन ज्ञान गुरु ऐप, उसके थ्रू आप हमारी लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। उसके लिए आप जो नंबर्स आपके स्क्रॉल डाउन हो रहे हैं बेटा, आप उन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यू कैन डिस्कस विद आवर काउंसलर्स, आवर कोऑर्डिनेटर्स, ताकि आपको उसमें भी हेल्प मिल सके। इफ यू वांट टू सी अ डेली, तो हमारा ज्ञान गुरु ऐप चलता है बेटा, जिसमें डेली हमारी लाइव क्लासेस चलती हैं, तो आप उसके लिए भी आ सकते हैं। बाकी यहाँ पे यूट्यूब पे तो आपको डे बाय डे हमारे सारे लेक्चर्स बेटा डे बाय डे एड ऑन होते जाएंगे, ताकि हम अपने स्टूडेंट को हर एक फील्ड में हेल्प कर सकें। तो अब क्या करते हैं, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। हम लोग अब अपना बेसिकली मूव आउट जो करेंगे, हम लोग चलेंगे बेटा, विल मूव टू यूनिट 1। तो यूनिट 1 पे अगर हम मूव कर रहे हैं, बेसिकली यूनिट 1 में मैं सिर्फ एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, जस्ट एक थोड़ा सा, ताकि हमारा पता लग जाए पहला चैप्टर है क्या। तो पहले चैप्टर का आप नाम पढ़ पा रहे हो, बेसिकली नाम क्या दिख रहा है बेटे? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, यानी इट इज जस्ट रिलेटेड टू द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में मैंने क्या कहा था, याद है बेटा? सबसे पहले जब मैं आया था मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था मैटर, स्टडी ऑफ मैटर इज केमिस्ट्री। तो मैटर क्या था? आप सबको पता है मैटर क्या था? एनीथिंग which has mass and which occupies space, so that is called matter। अब मैटर जब मैं बोलता हूं बेटे, तो मैटर में हम कहते हैं दो तरह की क्लासिफिकेशन है, फिजिकल क्लासिफिकेशन है या बेटा केमिकल क्लासिफिकेशन है। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब समझना दोस्तों बहुत आसान है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेट। व्हाट इज स्टेट बेटा? सॉलिड स्टेट है, लिक्विड स्टेट है या गैसियस स्टेट है? हमने बहुत अच्छे से पढ़ा, याद है? सॉलिड, डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम, बहुत बढ़िया तरीके से याद होता है सबको। लिक्विड स्टेट सबको पता है बेटे, डेफिनेट वॉल्यूम नॉट अ डेफिनेट शेप, क्योंकि जिस बर्तन में डालोगे बेटे आप जिस भी लिक्विड को, वो उसी की शेप ले लेगा, तो उसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं है। सिर्फ डेफिनेट क्या है उसमें दोस्तों? वॉल्यूम। और जो आपका गैसियस स्टेट है बेटे, गैसियस स्टेट में हमें पता है गैसियस क्या था बेटे? नीदर डेफिनेट शेप नो डेफिनेट वॉल्यूम। तो इसका मतलब फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेस पे तीन मेन बेटा कंपोनेंट्स आ गए, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है बेटा, तो ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है भाई, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेट। अब दूसरी ओर आप देख सकते हो आपके पास आ रहा है केमिकल क्लासिफिकेशन। अब केमिकल क्लासिफिकेशन में जब मैं बात कर रहा हूं, तो हम लोग जो नॉर्मली डिस्कस करते हैं, हम डिस्कस करते हैं बेटे प्योर और इम्प्योर कंपाउंड की। बहुत बढ़िया तरीके से आपको पता है बेटे, या तो कोई चीज प्योर होगी या कोई इम्प्योर होगी। तो इम्प्योर को क्या बोलते थे? याद करो बेटे, इम्प्योर को क्या बोलते थे? मिक्सचर। याद है बेटे? विच हैज नॉट एनी डेफिनेट कंपोजिशन, जिसमें आपने एलिमेंट्स को किसी भी डिफरेंट कंपोजिशन में मिक्स कर दिया। मिक्स, जैसे सिंपल एग्जांपल देखो, मिक्सचर गैसेस। आप हमेशा से बोलते आ रहे हो बेटा लोअर क्लास से कि एयर क्या है जी? मिक्सचर है सेवरल गैसेस का, है ना बेटा? तो दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मिक्सचर। और मैं इसको और सिंपल वे में बताता हूं, मैं कहता हूं मिक्सचर वो जिसका मैं फॉर्मूला ना लिख सकूं। भाई अगर मैं किसी को कहूं एयर का फॉर्मूला लिख दो, वो लिख ही नहीं सकता बेटा, बिकॉज उसका कोई फॉर्मूला है ही नहीं। इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस। ऐसे ही बेटा सॉइल, सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ ऑब्वियसली डिफरेंट कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन इट, तो उसका भी मैं कोई फॉर्मूला नहीं लिख सकता, तो वो भी क्या होगा बेटा? दैट इज ऑल्सो व्हाट? दैट इज ऑल्सो अ मिक्सचर। तो प्लीज याद रखिएगा बेटा, जो भी इम्प्योर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उस इम्प्योर को हम लोग क्या नाम देते हैं बेटे? उसको हम लोग नाम देते हैं मिक्सचर। और अगर मैं प्योर की बात करूं, तो प्योर में बेटे जैसे याद करो एलिमेंट, सबको याद होगा एलिमेंट पक्का, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, पोटाशियम, सबको याद रहता है बेटे। 100% पता होता है एलिमेंट के बारे में सबको, कि जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है जिसमें जो एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है बेटे, है ना? सिंपलेस्ट, इससे सिंपलेस्ट फॉर्म में मैं उसको चेंज नहीं कर सकता।
और बेटे अगर मैं बात कर रहा हूं कंपाउंड की, तो कंपाउंड का मतलब होता है बेटे जिसमें कंपोजिशन क्या है, फिक्स। अब इसको भी मैं बहुत ही सिंपल वे में आपको प्रेजेंट करूंगा, जिसका आप फॉर्मूला लिख सकते हो। याद करो वाटर, तो वाटर क्या था, फॉर्मूला सबको याद है, H2O, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। बेटे कभी भी देख लेना, कहीं फॉर्मूला देख लेना वाटर का, हर जगह पे क्या मिलने वाला है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। तो वाटर क्लियर है, कोई दिक्कत ही नहीं। मैं कहूं बेटे कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, लेट अस डिस्कस। मैं कहूं, आपको कहूं HCl, आपको पता ही है हाइड्रोजन और क्लोरीन। अगेन आप कहोगे सर फॉर्मूला पता है, बेटे जिसका फॉर्मूला पता है उसकी कंपोजिशन क्या है, फिक्स। उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे बेटा जी हम कंपाउंड। तो एलिमेंट क्लियर हो गया बेटे सबको, यानी जैसे सिंपल लिख दूं HON, दैट इज एलिमेंट। और अगर मैं कोई फॉर्मूला लिख दूं बेटे H2O, HCl, H2SO4, दैट इज कंपाउंड। और जिसका मैं फॉर्मूला ना लिख सकूं बेटे, वो क्या है जी मेरे लिए, मिक्सचर, जिसको मैं बोल रहा हूं इम्प्योर, है ना। तो सिंपल जैसे हमने एग्जांपल दिया एयर का, बहुत ही आसान एग्जांपल मैंने आपको दिया बेटे। अब मिक्सचर में इंपॉर्टेंट बात याद रखना बेटे, मिक्सचर में दो तरह के आपके पास पार्ट्स आ रहे हैं। एक आपके पास आ रहा है बेटे, अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो, वो हमारे पास जो मिक्सचर में पार्ट आ रहा है वो आ रहा है बेटे होमोजीनियस। अब सिंपल एग्जांपल समझना बेटे, डे टू डे लाइफ में एवरीबडी से दिस, हर एक इंसान ये चीज जरूर बोलता है बेटे कि भाई बेसिकली जब आप डेली एक दूध का गिलास पीते हैं बच्चे, तो उसमें हमारी मध्य हमसे पक्का पूछती है हमारी मम्मी, बेटे कितनी चम्मच चीनी डाल दूं। तो बेटे वो जो चीनी आपने डाल दी किसमें, दूध में, क्या वो मिक्स हो गया, वो तो मिक्स नहीं हुआ। तो बेटे दैट इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मतलब जिसमें कंपोजिशन क्या है, अलग अलग। तो अलग अलग कंपोजिशन, मिठास जो है बेसिकली पूरे दूध में चीनी का सेम नहीं है, नीचे ज्यादा ऊपर कम। तो वो है बेटे दैट इज योर हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और होमोजीनियस हो गया अगर उसको मिक्स कर दिया जाए बेटे, स्टिर कर दिया जाए, अब क्या होगा, अब स्टिर करने के बाद बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी बेटे, जो कंपोजिशन है वो थ्रू आउट क्या रहेगी, सेम। यानी मिठास हर जगह में दूध में क्या रहेगा, सेम। वो है बेटे होमोजीनियस मिक्सचर, जिसको बोलते हैं सॉल्यूशन। तो सिंपल एग्जांपल मैंने दिया बेटा कि अगर आपने दूध में चीनी डाली, दैट इज हेट्रोजीनियस, क्योंकि कंपोजिशन हर जगह सेम नहीं है, मिठास नीचे ज्यादा ऊपर कम। लेकिन जब मैंने उसको मिक्स कर दिया, स्टिर कर दिया बेटा चम्मच लेके, अब मिठास हर जगह इक्वल फैल गया, उसको क्या बोलते हैं बेटे, होमोजीनियस मिक्सचर, जिसको बोलते हैं सॉल्यूशन। और इसका +2 में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरा सॉल्यूशन। ठीक है बेटे, तो मिक्सचर सबको क्लियर हो गया, बहुत ही बढ़िया। अब बात करते हैं प्योर सब्सटेंस की। तो प्योर सब्सटेंस में मैंने क्या बताया था, एलिमेंट और कंपाउंड। तो ये बात तो सबको क्लियर होगी बेटे कि मैं सिंपल लिखूंगा अगर H तो दैट इज एलिमेंट, मैं लिखूंगा H2O दैट इज कंपाउंड, तो वो भी बात क्लियर होगी। और उसके बाद कंपाउंड के बाद हमने डिस्कस किया कि कंपाउंड में भी बेटे, अगर आपने सुना होगा लोअर क्लास में पढ़ा, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, याद है, इनऑर्गेनिक यानी नॉन लिविंग, जैसे नमक NaCl, याद है, मार्बल कैल्शियम कार्बोनेट, ध्यान है बेटे, जिप्सम आपने पढ़ा हुआ है बेटे, CaSO4.2H2O। तो ये सारे क्या है बेटा, दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम रॉक्स एंड मिनरल्स, तो उसको बोल देते हैं इनऑर्गेनिक। और ऑर्गेनिक लिविंग अभी बताया मैंने, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, तो वो क्या है बेटे, दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आल्सो। और जो आपका बेटे यहाँ पे एलिमेंट वाला हिस्सा है, एलिमेंट वाले हिस्से में आप देख ही सक रहे हो बेटे, तीन ही तरह के हमारे पास पार्ट्स थे। एक थे मेटल्स, आपको बहुत अच्छे से याद होगा बेटे, सोडियम, पोटेशियम, दे ऑल आर मेटल्स। इसी तरह से आपके पास था बेटे नेक्स्ट नॉन मेटल, आपको पता है नॉन मेटल कौन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, दे ऑल आर नॉन मेटल्स। और मेटलॉइड क्या थे बेटे, मेटलॉइड थे जिनमें बेसिकली हमने बात की थी कि मेटालिक और नॉन मेटालिक दोनों प्रॉपर्टीज ही प्रेजेंट हैं, है ना बेटा, जो बिहेव कर सकते हैं एज अ मेटल एज वेल एज नॉन मेटल। तो उसको हम बोल रहे थे मेटलॉइड या सेमी मेटल्स, इफ यू ऑल रिमेंबर बेटा। ठीक है, तो ये पूरा मैं एक रिव्यू दे देता हूं फटाफट कि जब मैं मैटर की बात कर रहा हूं, मैटर मींस बेटे एनीथिंग व्हिच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, एंड स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री, दैट इज डन। फिर मैंने कहा फिजिकल अगर क्लासिफिकेशन कर रहे हो तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में 3 पार्ट हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, व्हिच इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेट। और अगर आप केमिकल कंपोजिशन के बेस पे कर रहे हो बेटे क्लासिफिकेशन, तो आपके पास 2 पार्ट है, प्योर और इम्प्योर। तो प्योर में क्या कहा, एलिमेंट और कंपाउंड, और इम्प्योर में मैंने क्या कहा बेटे, मिक्सचर, जिसमें मैंने कहा 2 सब पार्ट थे, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। एग्जांपल याद हो गया सबको, हेट्रोजीनियस में मैंने क्या कहा था, शुगर आपने सिर्फ डाली, और होमोजीनियस में मैंने क्या किया था, उसको प्रॉपरली मिक्स कर लिया। और जो हमारा कंपाउंड था उसमें हमने बात कर ली बेटे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक यानी नॉन लिविंग और ऑर्गेनिक यानी लिविंग।
और मेटल्स में मैंने जैसे कहा एलिमेंट्स में हमारे पास 3 सब टाइप्स आ गई, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड। तो ये इनिशियल इंट्रोडक्शन आपको चैप्टर का बेसिकली पक्के से देखना बेटा, क्योंकि आपको सबसे पहले हर एक चीज की पहचान होनी चाहिए। और कोई भी अगर डाउट है, कोई क्वेरी होती है, तो जो भी आपको वीडियो आप देखेंगे उसके आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो कि सर ये चीज हमें क्लियर नहीं हुई, ताकि सर और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देंगे अगली बार बेटा, ताकि आपको पूरी पूरी हेल्प मिले हमारी तरफ से। ठीक है बेटा, बाकी मैंने बता दिया कि अगर बेटा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए बेटा, चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी सीडीए, जहां पे हमारे सारे टीचर्स बेटा आपको हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके बेसिकली आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपको पूरी बेटा हर एक चीज अचीव करने में हेल्प कर रहे हैं। चाहे आपको एनडीए में सिलेक्शन चाहिए बेटा, यू वांट टू सर्व बेसिकली एज इट इज अवर कंट्री इन डिफेंस फोर्सेस, चाहे आपको बेटा इंजीनियर बनना है, चाहे आपको डॉक्टर बनना है, ठीक है बेटा, चाहे आपने बेसिकली ह्यूमैनिटीज कॉमर्स के थ्रू आगे बढ़ना है बेटे, तो भी हम लोग आपके साथ हैं। तो हमारी पूरी टीम है बेटे जो आपके लिए दिन रात लगी हुई है, आपको अच्छे से अच्छे बेसिकली एज इट इज लेक्चर पहुंचाने के लिए। बट वी नीड एन एनकरेजमेंट फ्रॉम ऑल ऑफ यू, ताकि आप सब्सक्राइब करें और हमें लाइक करें, ताकि हमें ये एक मोटिवेशन मिले कि हम अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा हेल्प कर पाए। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, विल मूव फॉरवर्ड फ्रॉम दिस, हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ाएंगे। इट वाज अ ग्रेट टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू, इंटरेक्टिंग विद ऑल ऑफ यू। आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव एंजॉयड दिस लेक्चर, तो गेट रेडी टू फॉर नेक्स्ट रॉकिंग लेक्चर शॉर्टली। तो जल्दी ही मिलते हैं बेटा नए लेक्चर में। ठीक है बेटा, बाय बाय, टेक केयर, अपना पूरा ध्यान रखें इस कोविड-19 की सिचुएशन में, और हमारे लेक्चर बेटा, तो बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय बेटा, बाय बेटा।